is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थर्ड डिस्कस किया था. नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज if u means universal set, right? So u equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमें एलिमेंट्स दिए हैं एंड a set is our 2 4 6 8 and b is 2 3 5 7. We have to verify this equals to this, means left hand side must be equals to right hand side. Okay, left hand side equals to right hand side. Okay, so here first we will solve left hand side, then we will solve right hand side. If both equal, then it is verified. Okay, so here u union b complement means u minus universal minus a union b. Okay, see, a union b complement means when will universal minus a union b. क्लियर? जब हम यूनिवर्सल में से a यूनियन b माइनस कर देंगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. Now a union b is what? A union b. A union b will be 2 3 4 5 6 7 and 8, all elements of a and b. Okay, and order and repetition doesn't matter, we know that. So complement will be a union b complement will be universal. Universal is this. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have to just eliminate these elements, okay, from this set. So it will be, the left elements are 1 2, not 3, also 4 5 6 7 8, only 1 and 9. Okay, we have only 1 and 9. Now next, this is our left portion. Okay, left hand side. Now right hand side is a complement union b intersection b complement. So a complement is universal minus a and b complement is universal minus b. So the elements of a are 2 4 6 8. So we have to eliminate these elements from this set. Okay, so the left elements are 1 3 5 7 and 9 only. Okay, and u minus b is what? 2 3 5 7. So left elements 1 2 3 4 6 8 and 9. Okay, now intersection of these two will be what? A complement intersection b complement will be 1. 1 is common in both of these set, and 9, second one is 9. So we know that this is our right hand side portion. Now left hand side and right hand side portion both are equal. Here we have 1 and 9 elements, and here same also. Okay, so here LHS equals to RHS, and it is verified. Okay, now here a intersection b complement. So whenever we have complement, it means we are subtracting that set from universal. Okay, so a intersection b complement means universal minus a intersection b. Okay, so a intersection b is what? Which is common in both of these set. Okay, so 2 is common, so we will write 2, not 4, then not 3 6 7, only 2, right? So its complement will be what? Its complement will be when we'll eliminate this 2 from universal set. Okay, so the left elements will be in complements. Okay, so we have 1 3 4 5 6 7 8 9. Now this is our left hand side portion. Okay, now right hand side we have a complement union b complement. So a complement, we know that when we will subtract a from universal set, and b complement is when we subtract b from universal set. So it will be a elements are these. Okay, so we have here we have a complement and b complement. So I'm going to write this here. Okay, 1 3 5 7 9 एंड द सेकेंड 1 1 4 6 8 9. बिल्कुल वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पर. ना हमें इसका क्या चाहिए? यूनियन चाहिए. ठीक है, हमने देखा है हमें इसका यूनियन चाहिए, मतलब यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे. तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स आएंगे. तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है.
Now here we can see we have 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9. So both of these are same. So when left hand side equals to right hand side, it means it is also verified. Okay, so this is our question number 4. So here next question is draw appropriate Venn diagram for these 4 parts. ओके, सो पहला है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मैंने बताया था यूनिवर्सल से माइनस करते हैं उस सेट को, यानी A यूनियन B को. तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा A कौन से सेट है. ठीक है, सो लेट करते हैं कि अगर A हमारे पास है सपोज 1 2 एलिमेंट्स है. ठीक है, B हमारे पास है एक काम करते हैं, इसे 1 2 3 ले लेते हैं, एंड B हमारे पास है 2 3 4. ओके, सो ये हमारे पास एलिमेंट्स है. तो 1 2, अब A सेट ये है, B सेट ये है. ठीक है, तो 1 2 हमारे पास 3 ये है. ठीक है, 2 3 4 ये है, लेकिन इनमें से कॉमन क्या है, A इंटरसेक्शन B कितना है, 2 3 है. तो इसका मतलब है 1 हमारे पास ये है, 2 3 एलिमेंट्स ये है, और 4 ये है. तभी A के पास 2 3 है और B के पास भी 2 3 4 है, और कॉमन में ये आ गया. अब हमें निकालना है A यूनियन B. सो यहाँ पे यूनिवर्सल क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4 यूनिवर्सल होता है, सबको साथ लेके चलना. ठीक है, और हमारे पास A, अच्छा हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है. ठीक है, ये पूरा है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ A यूनियन B. ठीक है, तो A यूनियन B कितना आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4, ये दोनों सेट को मिलाकर यूनियन आ जाएगा. हमें फाइंड करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. तो इसे हम लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस A यूनियन B. तो यूनिवर्सल पूरा है, A यूनियन B हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन है. सी, जो ये सर्कल्स हैं ये हमारे पास A यूनियन B है. ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिवर्सल में से हटाना है A यूनियन B को. इस पूरे में से अगर मैं ये 2 सर्कल हटा दूंगी तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ओके, यानी अगर मैं पूरे यूनिवर्सल में से ये 2 सर्कल हटा दूंगी, यूनिवर्सल में से A यूनियन B, यानी ये दोनों यूनियन A यूनियन B ये है. ठीक है, जो मैंने ये पेंसिल से किया है ना, सी ये है A यूनियन B. ठीक है, अगर मैं A यूनियन B हटा दूंगी यूनिवर्सल में से तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यूनिवर्सल में से ये सर्कल हटा दिए तो हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा जहाँ पे मैं स्केच कर रही हूँ. दिख रहा है आपको, तो ये हमारे पास क्या आया, जो स्केच वाला पोर्शन था. ठीक है, वो हमारे पास क्या आया, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. क्लियर है आप लोगों को. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. उसके लिए हमें A कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए. A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से A के एलिमेंट्स हटाने. ओके, सो A कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस A. पूरे यूनिवर्सल में से ये हमारा पूरा यूनिवर्सल है जो स्क्वायर है, इसमें से हमें A हटाना है. A हमारे पास ये है. ठीक है, ये वाला सेट. ठीक है, इस सर्कल को मैं हटा के जो मेरे पास बाकी का बचता है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सर्कल को हटा के मैं जो तो ये हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट. पूरे यूनिवर्सल में से सिर्फ A हटाना और जो बाकी बचेगा वो हमारा A कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो हमारे पास है ना पेंसिल वाला जो हमने शेडेड कर रखा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, A कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट हमारे पास है B कॉम्प्लीमेंट. हमें B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी B वाले सर्कल को छोड़कर ये हमारे पास B. ठीक है, इस सर्कल को छोड़कर जो बाकी का पोर्शन है वो हमारे पास क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट. ओके, ओके, सो B कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे. B कॉम्प्लीमेंट में हमें B वाले सर्कल को छोड़कर बाकी में हमें शेड करना है. ठीक है, तो ये B सर्कल है, मैं इसको छोड़कर जो मेरे पास बाकी बचा है,
ठीक है, यूनिवर्सल में से बी हटाना है ना, तो बी का सर्कल मैं टच भी नहीं करूँगी, उसके अलावा जो मेरे पास है मैं सिर्फ वही लूँगी। तो आप देखेंगे मैं सर्कल को टच भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं सर्कल के अंदर नहीं जाऊँगी, उसके बाहर ही शेडेड करना है, क्योंकि यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल में से माइनस हो रहा है हमारे पास बी। ठीक है, ये है सर्कल बी का, मुझे ये नहीं छेड़ना, इसके अलावा मैं सारा पोर्शन कवर कर रही हूँ, सिर्फ बी का सर्कल नहीं टच करना है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने बी सर्कल छोड़ के बाकी सारा कवर कर दिया है। तो हमारे पास जो ये लाइनें आई है ना, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस बी हो गया, हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। यानी आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए हमारे पास स्केच था, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट लाइनिंग थी, तो लाइनिंग और स्केच कहाँ पर कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ स्केच, यहाँ पर सिर्फ हमारा हमने शेड कर रखा है तो ये नहीं आएगा, ये वाला शेडेड एरिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी शेडेड नहीं है, सिर्फ हमारी लाइन्स है, ठीक है, तो ये भी कॉमन नहीं है, कॉमन ये है जहाँ ये शेडेड हो रखा है, दिख रहा है आपको, और लाइन भी साथ में है, क्योंकि दोनों का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, यानी लाइन और शेडेड जहाँ पे हो रखा है, मैंने यहाँ पे शेड नहीं किया था जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ठीक है, तो हमें, और यहाँ पे शेड है तो यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा जो आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये शेडेड पोर्शन है और इसके साथ जो लाइनिंग है, ठीक है, वो वाला हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें ए यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है इसके लिए। ठीक है, उसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन है, मैं शेड कर रही हूँ जो इंटरसेक्शन का होता है, ठीक है, जहाँ पे कॉमन आते हैं एलिमेंट्स, तो जो यहाँ पे शेडेड है वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना है, तो पूरे में से मैं सिर्फ इस पोर्शन को हटाऊंगी और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो बचेगा बाकी, ठीक है, यूनिवर्सल में से सिर्फ इसको हटाना है, तो मैंने ये हटा दिया, तो बाकी जो स्केच वाला पोर्शन बचा है, जिसमें हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, जो स्केच वाला पार्ट है सिर्फ वही हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ये लाइन, सिर्फ लाइन वाला पोर्शन है, वही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। ओके, इन लास्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यानी हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस बी, उसके बाद हमें इनका यूनियन लेना है। ओके, तो यूनिवर्सल माइनस ए, यानी पूरे यू में से मैं अगेन फिर से ए वाला पोर्शन हटा रही हूँ, ए यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारा पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो शेडेड से मैं उसे शो करूँगी, तो ये जो मैंने शेडेड किया है सिर्फ ए वाले सर्कल को छोड़ के पूरा, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट हमको बी कॉम्प्लीमेंट शेड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल माइनस बी, यानी हमें यूनिवर्सल में से बी हटाना है, तो मैं बी को लाइन नहीं दूंगी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बी वाले सर्कल को छोड़ के मैं सारा कवर कर रही हूँ। सिर्फ बी पे नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है, बाकी सारा कवर होगा। उसके बाद अब ये हमारा बी है, ठीक है, बी को हमने छोड़ दिया है, तो जो लाइनिंग वाला पोर्शन है ना, समझ जाना, वो यूनिवर्सल माइनस बी है। अब हमें इन दोनों का
यूनिवर्सल लेना है, ओके, इन दोनों का यूनियन लेना है, ओके। सो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से आएंगे? एक तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, जो भी हमारे पास शेडेड रीजन था, साथ साथ में हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है ना वो पोर्शन भी आएगा, मतलब ये तो आएगा ही, ठीक है। जो लाइनिंग वाला है, लाइनिंग पोर्शन भी कवर करेंगे, जो सिर्फ शेडेड है वो भी रहेगा, बस दोनों ही आएंगे। तो आप देखिए कौन सा पोर्शन है, लाइन है, शेडेड है, दोनों आएंगे, ठीक है। लाइन है, शेड है, मैं दोनों ही ले रही हूँ, ठीक है। लाइन है, शेड है, शेड ये शेडेड था पहले पार्ट के लिए, तो मैं इसको भी कवर कर रही हूँ। लाइन भी है, शेडेड भी है, ठीक है। सिर्फ खाली शेडेड वाला भी रीज़न होगा, देख रहे हैं आप, तो शेडेड तो यहाँ पे भी है, ये भी कवर होगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने बीच वाला पोर्शन जो है वो कवर नहीं किया, क्योंकि ना उसमें लाइन थी और ना शेड हो रखा था, ना उसमें लाइन हो रखी थी ना ही शेड हो रखा था, तो मैंने वो पोर्शन कवर नहीं किया है। तो जो लाइनिंग वाला पोर्शन है ना, ठीक है, वही हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो ये चारों फिगर हमारे वेन डायग्राम से क्लियर हो गए हैं, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।